So hello my lovely children, how are you all? Hope you all are doing well. Welcome you all to the most interesting biology live session on the wonderful platform of Avanti. Yes, so I hope you all remember that what we were learning in the previous class. Do you all remember? We were learning about what? Digestive system. Right, we just had our first class on the topic digestive system. Now we will be moving ahead and this is going to be our lecture number 2. Right, lecture number 2 on the topic digestive system. Right, so let me share the screen. So we were talking about this, right? Yes, so lecture number 2 on the topic digestive system. In the first class, what we had learned, I had just given you the brief overall idea of digestive system. What are the major components of food? How you eat? Where does the food go? And then from intestine, where does it go? It goes to blood vessels. What is that process called as? Who will tell me? So when you eat food, the macromolecule gets broken down into micromolecule. Now, that micromolecule, absorbable form, gets absorbed to the blood vessels from small intestine. What is that process called as? Priyanshi has answered, Akansha has answered, Janvi has answered, others. Is it absorption? Click yes if it is absorption. Click on yes if it is absorption. I think clicking on yes and no is easy, right? Yeah. Those who are using phone, for you it will be easy to click on yes and no. Yeah? Right. All right. So I hope everyone knows that is absorption, right? The process is called as absorption. Right. Large intestine. What are the parts of large intestine? Is it colon, rectum, and anus? Yes or no? Colon, rectum, and anus. Okay. How many parts do we get in colon? Is it ascending colon, transverse colon, descending colon, and sigmoid colon? Yes or no? Ascending, transverse, descending, and sigmoid. Is it correct? Yes or no? Everyone, are you listening to me? Yes, yes. Are you listening to me? Yes, yes. Yeah. Okay. Chalo, badhiya. How many pair of salivary glands do we have? Who will answer? If it is one pair, click on yes. If it is 3 pairs, click on no. So I have got some answers in the chat box from Udayan and Priyanshi. You are right. Absolutely right. Yes, it is 3 pairs. So today we are going to learn from mouth, right? All these we had discussed yesterday. Yeah? So human digestive system has alimentary canal and glands, associated glands. Alimentary canal starts from the mouth and opens opens through the anus. Right? Can you see anterior and posterior terms are used? Do you know what is the meaning of anterior? Aage. Do you know the meaning of posterior? Piche. Front, back. Okay? So anterior we have mouth and posterior we have anus. What are glands? From mouth to anus it is alimentary canal. What are glands? What are glands? You studied structural organization, right? What are glands? They are nothing but cells. Which type of cells? Epithelial cells. Which type of epithelial cells? It can be what? Cuboidal or columnar,
cells. So when most of the time it cuboidal or columnar cells. Whenever cuboidal or columnar cells get modified to secrete, you call it as gland. You actually call it as glandular epithelium. So दुनिया कहाँ चलती है? शॉर्टकट पे चलती है, तो हम इसको छोटा करके ग्लैंड बना दिए. We made it short and we learned it as gland. We learn it as gland. Okay? तो कौन कौन से ग्लैंड? माउथ से स्टार्ट करो, सलाइवरी ग्लैंड. फिर एलिमेंट्री कैनाल में भी चीजें हैं, वो हम बाद में सीखेंगे. हम एसोसिएटेड ग्लैंड के बारे में सीख रहे हैं, ठीक है? लेट मी जस्ट ऐड दैट पॉइंट ऑल्सो. एसोसिएटेड ग्लैंड मतलब एलिमेंट्री कैनाल के चारों तरफ थोड़े थोड़े कुछ कुछ ऑर्गन्स हैं जो ग्लैंड के जैसे काम करते हैं. माउथ और एनस के अलावा वो क्या है? सलाइवरी ग्लैंड्स. 3 पेयर्स होंगे. कौन कौन से होंगे? सब मैक्सिलर. हाँ वाह, सबको सब कुछ पता है यहाँ. सबलिंगुअल एंड पैरोटिड. ओके, सब मैक्सिलर, सबलिंगुअल, पैरोटिड. सब का मतलब होता है क्या? नीचे. सब मैक्सिलर का मतलब जॉ के नीचे, जॉ के नीचे, अंडर. बिल्कुल करेक्ट उदयन. लिंगुअल मतलब सब लिंगुअल, लिंगुअल मतलब टंग. ओके, टंग के नीचे. और पैरोटिड आपका ये कानों के पास, गाल के पीछे, बिहाइंड द चीक्स, बिहाइंड द चीक्स एंड कान के पास. ओके, तो यहाँ पे कहीं पे एक सलाइवरी ग्लैंड, 1 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड. जॉज में 1 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड. टंग के नीचे 1 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड. तो कितने पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड? 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स. सब, अब कोई बोल दे मान लो सब मैक्सिलर की जगह किसी ने सब मैंडिबुलर लिख दिया, क्या ये गलत है? बोलना, क्या ये गलत है? नो. आप इसको सब मैक्सिलर भी बोल सकते हो, सब मैंडिबुलर भी बोल सकते हो, ठीक है? ऐसे सेम मैक्सिला एंड मैंडिबल सेम नहीं है. मैक्सिला आपका ऊपर का होता है, ऊपर वाला जॉ, और मैंडिबल, मैंडिबल होता है नीचे, ये वाला, ये जॉ लाइन, ये आपका मैंडिबल है, ठीक है? तो मैंडिबल और मैक्सिला अलग अलग चीजें हैं, लेकिन जब बात ग्लैंड की आती है तो हम जो जॉ में ग्लैंड्स प्रेजेंट है उसकी बात कर रहे हैं ना. हमारे पास 2 जॉ है, 2 ग्लैंड है जॉ में, तो उसको सब मैक्सिलर भी बोल सकते हो, सब मैंडिबुलर भी बोल सकते हो, ठीक है? सबलिंगुअल, बिलो द टंग, बिहाइंड द चीक्स, 1 पेयर ऑफ पैरोटिड ग्लैंड. सबको समझा? अब ग्लैंड है, एक बात बताओ, क्या ये एंडोक्राइन ग्लैंड है? मैं बोल रही हूं इनके पास डक्ट है. आई एम सेइंग दिस, आपको मैं बोल रही हूं कि डक्ट्स प्रेजेंट है, तो बताओ ये एक्सो है या एंडो है? एक्सो सबको पता है, बिल्कुल सही. दिस इज एन एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन, not an, this is exocrine gland. Salivary glands are what? Exocrine gland, because you can see they have duct. जैसे ही पता चला डक्ट है, इसका मतलब ग्लैंड्स में डक्ट अटैच होंगे और जहां पे भी उसको सिक्रीशन करना है वहां पे उसका सिक्रीशन होगा. ओके, तो डक्ट है. अब डक्ट है तो सबका नाम है. अब यहाँ पे देखो, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है. आई टोल्ड यू, जो भी एनसीईआरटी से थोड़ा सा एक्स्ट्रा होगा आई विल टीच यू, उसके लिए वरी नहीं करना है. बट मैं जितना पढ़ाती हूँ उतना ही पढ़ो. हो सकता है आपको अवंती का टेस्ट में कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिले जो आपको नहीं आता है, घबराना नहीं है. टेस्ट पेपर ऐसे ही सेट किया जाता है ताकि आप आउट ऑफ आउट स्कोर नहीं करो, ठीक है? नीच में ऐसे पेपर्स नहीं आएंगे. ओके, व्हाट आई एम टेलिंग यू, जस्ट फॉलो दैट. तो सब मैक्सिलरी के लिए कौन सा डक्ट है? वॉर्टन डक्ट. सब लिंगुअल के लिए कौन सा है? राइविनस, ठीक है?
एंड पैरोटिड के लिए कौन सा है? स्टेनसन्स, स्टेनसन्स डक्ट. सबलिंगुअल के लिए राइविनस एंड सब मैक्सिलरी के लिए वॉर्टन. ओके, हाउ विल यू रिमेंबर इट? हाउ विल यू रिमेंबर इट? Anyone has any trick to remember? Parotid, Stenson's, sublingual, Rivinus, submandibular, Wharton. How will you remember it? Anyone? Can we make something like this? Wah, man, wah, man. So Wharton, mandibular, right? Then sublingual, DSLR we have, no? DSLR, SLR and DSLR. You know, right? DSLR. नॉर्थ के बच्चों को तो बहुत पता है ये सारी चीजें. Everyone knows, right? Click on yes if you know. Yes. So SLR, SLR, sublingual Rivinus. And then remaining वाला parotid होगा Stenson's. ओके, या फिर पार्सन याद कर सकते हो, पार्सन. ऐसे पता नहीं आपको पता है कि नहीं, हमारे में बोलते हैं कि किसी को खाना खाना परस दो. सुना है कभी? आई डोंट नो आप कितने एडवांस हो. तो ऐसे हिंदी में बोलते हैं कि खाना परसना, खाना लगाना, राइट? तो परसना, पर्सन. और ऐसे याद नहीं तो अंग्रेजी में याद कर लो पर्सन. ठीक है, इंग्लिश में पर्सन. So person, parotid, Stenson's. So I have just given you a small little easy way to remember. It is on you, however you want to remember you can. ठीक है? But if any one student is also getting help from this, I will do it. Okay? So that is all. Salivary glands done. Their secretions and all we will learn slowly. Now other glands are what? Liver. What's the largest gland or what's the largest organ in our body? What is it? Liver, right? Liver is the largest gland. If you talk about organ, then it is skin. Yes, Uday, है ना? Skin पूरे overall body में है. But liver is the largest gland. Okay? Then pancreas also secrete, है ना? Pancreatic juices. Pancreas, actually pancreas is a mixed organ. You know it, right? It is a mixed organ. Pancreas is a mixed organ or heterocrine organ. Mixed or heterocrine organ. ठीक है, mixed or heterocrine means it has endocrine as well as exocrine function. It means some part of pancreas will secrete enzyme and some will secrete hormone. Which hormone do they secrete? Anyone knows? Which hormone do they secrete? Yes, Janvi, perfect. They secrete insulin, glucagon, right? Yes, Udayan. Numan, you don't know? Yes, Priyanshi, awesome. Just click on yes, those who know. Sometimes I understand those who are operating with mobile phone, you feel easy to click on yes, no, right? So at least do that. Clicking on yes and no, I know that is not difficult, right? Typing might be an issue, but clicking on yes and no should not be a problem, right? Yes. Yes, Udayan. Pancreatic juices. Pancreatic polypeptide, somatostatin, so many things. We will see their secretions. ठीक है? So these are the associated glands: salivary gland, liver, and pancreas. Salivary gland, 3 pair. What are the name? What are the ducts? We have discussed. Okay. Now we are learning what? Your alimentary canal is hollow or solid? Think. Hollow का मतलब खाली, solid का मतलब भरा हुआ. ठीक है, पूरा full.
जैम पैक्ड। तो एलिमेंट्री कैनाल हॉलो है तो यस पे क्लिक करो, और अगर जैम पैक्ड है तो नो पे क्लिक करो। बिल्कुल, हाँ साक्षी, सब लोग करेंगे यस और नो पे क्लिक, कुछ पे करो तब तो समझ आएगा मुझे। बिल्कुल सही कर रहे हो, एकदम सही। हाँ, और लोग चाहिए मेरे को, 4 जन और चाहिए, 4 मोर पीपल। नो पे कर दो क्लिक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं समझ जाऊंगी आपका एलिमेंट्री कैनाल पूरा भरा हुआ है ऑलरेडी, ठूस ठूस कर खाना भर दिया है। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल हमारा हॉलो ऑर्गन है, तभी तो खाना उसके अंदर जा रहा है ना। तो जो हॉलो ऑर्गन है उसको, जैसे पाइप, वाटर का पाइप है ना, पानी आ रहा है आपके टैंक से, तो आप पाइप लगाते हो ना, तो उस पाइप हॉलो है लेकिन बाहर से कुछ तो है, बाहर से तो कुछ बना है, तभी तो वो पूरा स्ट्रक्चर बन पाया। तो हम पढ़ने वाले हैं उसको कौन कौन से टिश्यूज बनाते हैं, हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, विच ऑल टिश्यूज मेक द एलिमेंट्री कैनाल। तो हिस्टोलॉजी बोलो या लेयर्स बोलो, बात एक ही है, हम इसमें टिश्यूज सीखेंगे। हिस्टोलॉजी, ठीक है, हिस्टोलॉजी, लेयर ऑफ द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो कहां से सीखोगे, बाहर से अंदर या अंदर से बाहर? यस सृष्टि, 4 लेयर्स होते हैं। कितने लेयर्स होते हैं बच्चों, सुन रहे हो सबके सब? कभी मत भूलना, लाइफ का इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एलिमेंट्री कैनाल खाने के लिए जी रहे हैं हम। कितने लेयर्स होते हैं? 4 लेयर। किसी ने एक लेयर कबाड़ दी, किसी ने एक लेयर निकाल के फेंक दी, तो सोचो क्या होगा, सारा उथल पुथल मच जाएगा, है ना। तो 4 लेयर्स है। बाहर का लेयर मतलब जो पाइप है, मान लो बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे हम, सबसे बाहर का लेयर को बोलते हैं सेरोसा। क्या बोलते हैं? सेरोसा, सबसे बाहर का, कुछ ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। आप सोचो कौन सा टिश्यू होगा ये, लाइनिंग ऑफ द ऑर्गन, हॉलो ऑर्गन, लाइनिंग ऑफ द विसरल ऑर्गन, कौन सा टिश्यू करता है बोलो, रिलेट करो चीजों को, कौन सा टिश्यू करता है? बिल्कुल अमेजिंग, एपिथेलियम करता है, स्क्वामस एपिथेलियम, है ना। जहां पे भी विसरल ऑर्गन को एपिथेलियल कवर करता है उसको आप मीजोथेलियम बोल सकते हो। तो मीजोथेलियम कुछ बड़ा नहीं है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। मीजोथेलियम वो स्ट्रक्चर है जो आपके विसरल ऑर्गन को कवर करता है, आपका वो एपिथेलियम है जो विसरल ऑर्गन को कवर करता है, समझे। तो द स्क्वामस एपिथेलियम व्हिच इज कवरिंग द हॉलो ऑर्गन्स इनसाइड योर बॉडी, दैट इज कॉल्ड एज मीजोथेलियम। समझे? नहीं समझे? समझे ना? समझ गए? आई होप समझ गए। समझे कि नहीं समझे? हाँ बिल्कुल सही सृष्टि। अब दूसरी लेयर पे आ जाओ, मस्क्यूलैरिस, नाम पे लिखा है मस्क्यूलैरिस, मतलब मसल्स होंगे। कैसे मसल्स होंगे बताओ, कैसे मसल्स होंगे? 3 तरह के मसल्स पाए जाते हैं, रटना नहीं है, सोचो। 3 तरह के मसल्स पाए जाते हैं। एक जो आपके बोन्स में अटैच है, जो बोन्स में अटैच है उसको स्केलेटल बोलते हो ना, जो बोन्स में अटैच है उसको क्या बोलते हो? स्केलेटल बोलते हो, स्केलेटल मसल्स। जो आपके विसरल ऑर्गन से अटैच है उसको क्या बोलते हो बताओ? बिल्कुल नुमान, एकदम सही बोल रहे हो, स्मूथ बोलते हो। और जो आपके हार्ट से अटैच्ड है, दिल से, एकदम दिल से अटैच्ड है, वो कौन सा मसल्स है? कार्डियक। तो दुनिया में आपकी बॉडी में 3 ही तरह के मसल्स पाए जाते हैं। तो बताओ, रटना है क्या? बताओ मस्क्यूलैरिस कौन सा बॉडी है? विसरल ऑर्गन है, बोन से तो अटैच नहीं है भाई, तो विसरल है। कौन से मसल्स होंगे? रटना है ही नहीं, स्मूथ मसल्स होंगे। कैसे मसल्स होंगे? स्मूथ मसल्स होंगे। कैसे अरेंजमेंट है उसकी? बाहर का, सबसे बाहर का सेरोसा हो गया, उसके बाद आपका मस्क्यूलैरिस है। वो मस्क्यूलैरिस 2 लेयर में है, 2 लेयर में। बाहर की तरफ है लॉन्गिट्यूडनल और अंदर की तरफ है सर्कुलर।
किसी को ये पूछना है कि मैम लॉन्गिट्यूडनल में सर्कल दिखा रहा है एंड सर्कल में लाइन दिखा रहा है लॉन्गिट्यूडनल, एनीवन हैज एनी डाउट? किसी को लग रहा है क्यों ऐसा है? लॉन्गिट्यूडनल में सर्कल दिख रहा है और सर्कुलर में लाइंस दिख रहे हैं, है ना? बिल्कुल सही साक्षी, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये क्रॉस सेक्शनल व्यू है। तो देखो सृष्टि समझ आ जाएगा अभी। ये पूरा स्ट्रक्चर अभी दिख रहा है ना आपको? पूरा दिख रहा है। अब मैं इसके व्यू को चेंज कर रही हूँ। इधर मैंने इसको कट कर दिया। इसको कट करके मैं सिर्फ आपको ये दिखा रही हूँ। बोलो क्या दिख रहा है आपको? क्या दिख रहा है? बताओ क्या दिख रहा है? सर्कल जैसा कुछ दिख रहा है, सोच के बोलना। क्या दिख रहा है यहाँ से? सर्कल दिख रहा है या नहीं? क्लिक करो यस पे अगर सर्कल दिख रहा है तो। थोड़ा तो दिखेगा यार, है ना? यही होता है क्रॉस सेक्शनल। आप उसको कट करोगे, मान लो इसको कट किया हमने, कट किया और हम ऊपर से देखेंगे इसको कट करके कि क्या है, तो ऊपर से तो सर्कल ही दिखेगा ना, चमका ना? हाँ ठीक है। इसीलिए ये भी तो लॉन्गिट्यूडनल था, ये भी लॉन्गिट्यूडनल था। इसको कट करोगे उधर से देखोगे तो क्या दिखेगा? सर्कल दिखेगा, समझे? इसलिए सारे लॉन्गिट्यूडनल मसल्स को सर्कल दिखाया है और सर्कल को सर्कल दिखाया, सॉरी हाँ, सारे लॉन्गिट्यूडनल को क्या दिखाया? सर्कल दिखाया और सारे सर्कुलर को सर्कुलर दिखाया। सबको जोड़ लो, सर्कल बन जाएगा। ठीक है, इसीलिए सर्कुलर को ऐसे सर्कल दिखाया और लॉन्गिट्यूडनल को सिर्फ उसका ये वाला पार्ट दिखा तो उसको सर्कुलर में दिखा रहा है, समझे? तो एग्जाम में लेबलिंग जब आएगा तो कंफ्यूज मत होना। इसका मतलब इसको इमेजिन कर लो पूरा ऐसे लॉन्गिट्यूडनल, तो ये लॉन्गिट्यूडनल बाहर और अंदर सर्कुलर मसल्स, 2 लेयर खत्म। इसका फंक्शन हम सीखेंगे। ऑब्वियसली मसल है तो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेगा। सुना होगा आपने पेरिस्टालसिस वगैरह, तो पेरिस्टालसिस से आपका फूड अंदर जाता है, तो वो सब ये सब हेल्प करते हैं। हम सीखेंगे, फंक्शंस अभी नहीं सीख रहे, सिर्फ स्ट्रक्चर सीख रहे हैं। 2 लेयर समाप्त होता है और तीसरी लेयर में हम प्रस्थान करेंगे। तीसरी लेयर कौन सी है? सेरोसा मस्कुलरिस, उसके बाद सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा में अच्छा ठीक है, एक चीज मैंने छोड़ दी, ये बता देती हूँ। जैसे मस्कुलरिस हुआ, सब म्यूकोसा हुआ, इन लोगों को कंट्रोल कौन करेगा कि भाई तू कॉन्ट्रैक्ट कर जा, तू अभी रिलैक्स कर जा? कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स को कंट्रोल कौन करेगा? आपकी बॉडी में कंट्रोल कौन करता है सब कुछ? ब्रेन, नर्वस सिस्टम। मतलब वहां पे न्यूरॉन्स जाएंगे, न्यूरॉन्स होंगे ना, तो ये आपका एनसीईआरटी में नहीं है। मस्कुलरिस लेयर में आपके कौन से न्यूरॉन्स होते हैं? मायंटेरिक प्लेक्सस। कौन से होते हैं? मायंटेरिक प्लेक्सस। अब देखो, मसल्स को मायो बोलते हो कि नहीं? कुछ कुछ पता होगा ना। मसल्स को मायो बोलोगे ना, MYO, मायो। तो उसी से देखो, मायो से मायंटेरिक याद कर सकते हो, मायंटेरिक, है ना? मायो मसल्स, मायंटेरिक प्लेक्सस। ठीक है, तो ये आपका नर्वस स्टिमुलेशन होता है मस्कुलरिस के लिए, जो कंट्रोल करेगा मसल्स को। कूल। तीसरी लेयर पे आ जाओ, सब म्यूकोसा पे। इसमें क्या होंगे? कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू होंगे, जिसमें क्या क्या होगा? बहुत सारी चीजें और होंगी। नर्व्स होंगे, ब्लड होंगे, लिम्फ, ब्लड वगैरह का तो कनेक्शन होना पड़ेगा ना, ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, नर्व्स। ये जो नर्व्स होते हैं, क्या बोलोगे उसको? मिजनर्स प्लेक्सस। क्या बोलोगे? मिजनर्स प्लेक्सस। क्या बोलोगे? मिजनर्स प्लेक्सस। मस्कुलरिस में मायंटेरिक प्लेक्सस, मस्कुलरिस में मायंटेरिक प्लेक्सस एंड सबम्यूकोसा में मिजनर्स प्लेक्सस। गॉट इट? समझे? चलो, सेरोसा आउटर मोस्ट लेयर हो गया, मस्त प्रोटेक्शन देगा।
उसके बाद मस्कुलरिस कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेगा, उसको कंट्रोल करने के लिए नर्वस सिस्टम जो है उसको क्या बोलते हो, मायोएंटेरिक प्लेक्सस। नीचे आ जाओ भाई, तुम्हें ब्लड चाहिए, लिम्फ चाहिए, सब कुछ, लूज कनेक्टिव टिश्यू चाहिए सबको जोड़ने के लिए, तो सब म्यूकोसा में सब पाया जाएगा। नर्वस वाले पार्ट को बोलोगे मिजनर्स प्लेक्सस। अब आ गई आपकी सबसे अंदर की पार्ट, ऐसे है ना, ऐसे है, तो अंदर में क्या है, इस अंदर वाले लेयर में क्या है, जो हॉलो जगह को फेस कर रहा है, हॉलो स्ट्रक्चर को फेस कर रहा है, वो वाला पार्ट एक्सपोज्ड है हॉलो स्ट्रक्चर से, क्या बोलते हो उसको, यस सृष्टि, क्या बोलते हो, म्यूकोसा, इनर मोस्ट, ठीक है। तो म्यूकोसा में क्या होगा, फोल्डिंग्स होगी, पेट में जो फोल्डिंग होती है स्टमक में उसको रूगे बोलते हो, और यही इंटेस्टाइन वगैरह में फिंगर लाइक फोल्डिंग होगी, विलाई बोलोगे, विलाई के ऊपर भी फोल्डिंग होगी, माइक्रोविलाई बोलोगे, सुना है ये सब। When in the stomach mucosa has folding, you will call it as rugae. When in the intestine, you all can close your eyes. थोड़ा रिलैक्स कर लो, हर बार स्क्रीन को मत देखो, आंखें खराब हो जाएगी, ठीक है। सो उसके बाद क्या सोचा हमने, कहाँ थे हम, क्या सोचा हमने, जल्दी बताओ, someone has to tell। स्टमक में रूगे बोला, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होंगे विलाई बोलोगे, उसके ऊपर प्रोजेक्शन, उसके ऊपर भी प्रोजेक्शंस होंगे, क्या बोलोगे, माइक्रोविलाई। कोई मुझे ये बता सकता है विलाई और सीलिया में क्या डिफरेंस है, या विलाई और फ्लैजिला में क्या डिफरेंस है, कोई बता सकता है। विलाई, माइक्रोविलाई, ये सब जो चीजें हैं, इसमें और फ्लैजिला में क्या डिफरेंस है, एनीवन कैन टेल, कैन रेज द हैंड, आई कैन अनम्यूट यू। किसी को थोड़ा भी पता है, कुछ ट्राई कर सकते हो। विलाई इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, ऑसम प्रियांशी। और कोई, किसी और को डिफरेंस पता है, बिल्कुल करेक्ट डिफरेंस है प्रियांशी, हाँ आकांक्षा, इट इंक्रीजेस द एब्जॉर्प्शन एरिया। विलाई डजंट हेल्प इन लोकोमोशन वेयर एज फ्लैजिला हेल्प्स इन मूवमेंट, एकदम सही। और बताओ, सब फंक्शन वाले से बताए जा रहे हो, अच्छी बात है, आपको अगर फंक्शन पता है तो सब कुछ पता है ना। एक बात बताओ, सीलिया गिव्स डायरेक्शनल फ्लो, बहुत अच्छी बात है। फ्लैजिला हेल्प्स इन लोकोमोशन, बहुत अच्छी बात है। ये तो फंक्शन आपको पता है, मुझे इतना पता चल गया कि यू नो द फंक्शन। विलाई सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा, अब्जॉर्प्शन करेगा। सीलिया फ्लैजिला का फंक्शन लोकोमोशन वगैरह में होगा, है ना। अब जब सेल पढ़ रहे थे, सेल चैप्टर खत्म हो गया, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, अगर नहीं भी हुआ है तो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, उसमें सेल ऑर्गेनल पढ़ते हैं, उसमें सेल ऑर्गेनल पढ़ते, तो क्या उसमें आप एज अ सेल ऑर्गेनल पढ़ा था, यस और नो बोलो। डिड यू लर्न विलाई एज अ सेल ऑर्गेनल इन चैप्टर सेल, या कभी भी पढ़ा होगा क्लास 10 तक, तो क्या विलाई को सेल ऑर्गेनल कैसा पढ़ा था, नहीं। अब बताओ, क्या सीलिया और फ्लैजिला पढ़ा था, सोच के बोलिए। यस, तो दिखा क्या डिफरेंस है, शुड आई टेल यू व्हाट इज द डिफरेंस नाउ, नो राइट। देखो, ऐसे ही चीजों को कनेक्ट करो, है ना, बायो तभी इजी हो जाएगा, है कि नहीं। सीलिया फ्लैजिला आपके सेल ऑर्गेनल्स है, बट विलाई आपका सेल ऑर्गेनल नहीं है, वो तो फोल्डिंग्स है मेम्ब्रेन का, है ना, म्यूकोसा की फोल्डिंग्स है वो तो, एपिथेलियल टिश्यू की फोल्डिंग है वो तो, है ना, मेम्ब्रेन खुद फोल्ड हुआ है वहां पे। सीलिया फ्लैजिला ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बेसल बॉडी से ओरिजिनेट होता है अंदर से, है कि नहीं। आई होप समझ आ रहा होगा। चलो, तो म्यूकोसा में हमने देखा कि पेट में इरेगुलर फोल्ड को रूगे बोलते हैं, और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो होते हैं उसको विलाई बोलते हैं। ये सबको पता है कि वो लोग सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं, है ना। अब देखो, म्यूकोसा में ना 3 लेयर होते हैं, ये एनसीईआरटी में नहीं है। म्यूकोसा में कितने लेयर होते हैं बच्चों, 3 लेयर्स होते हैं। कौन कौन से, मस्क्युलरिस म्यूकोसा, लमाइना प्रोप्रिया
एंड सबसे अंदर वाला जो होगा एपिथेलियम, मतलब सेरोसा, लॉन्गिट्यूडनल, सर्कुलर मसल, उसके बाद आपका सब म्यूकोसा, उसके बाद होगा मस्क्यूलरिस म्यूकोसा, लमाइना प्रोप्रिया, एपिथेलियम, उसके बाद जाके आपको मिलेगा हॉलो ऑर्गन। आई होप आपको समझ आया हो, नहीं आया है तो मैं भी बता देती हूँ। देखो, सेरोसा के बाद मस्क्यूलरिस में कितने लेयर्स है? 2 लेयर्स, खत्म। ठीक है, सेरोसा, मस्क्यूलरिस के 2 लेयर, उसके बाद क्या? सब म्यूकोसा। क्या प्रॉब्लम है, ऐसे ड्रॉ कर देती हूँ। सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा के बाद क्या? म्यूकोसा में कितने लेयर्स मैंने बताया, स्टार्टिंग से बताओ, याद है कुछ? मस्क्यूलरिस म्यूकोसा, अलग कलर देखती हूँ तो तुम्हें ज्यादा समझ आएगा। मस्क्यूलरिस म्यूकोसा, उसके बाद लमाइना प्रोप्रिया, उसके बाद आपका एपिथेलियम, एंड उसके बाद आपको हॉलो ऑर्गन मिलेगा। उसके बाद आपको हॉलो ऑर्गन, ये सब तो भरे हुए हैं, ये आपका हॉलो ऑर्गन होगा, यहाँ पे खाना जाएगा। समझ रहे हो? ये ऐसा होगा आपका एलिमेंट्री कैनाल। मस्क्यूलरिस म्यूकोसा, देखो यहाँ पे, ये भी मस्क्यूलरिस है, ये भी मस्क्यूलरिस है, मतलब इसमें भी आपको यही मसल्स मिलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स मिलेंगे, इसीलिए तो इसका नाम मस्क्यूलरिस रखा गया। मतलब वो भी कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेगा और हेल्प करेगा पेरिस्टालसिस में, है ना? फिर लमाइना प्रोप्रिया, इसमें कनेक्टिव टिश्यूज वगैरह होंगे। और ये जो एपिथेलियम है ना, सुना है गैस्ट्रिक ग्लैंड, सुना है विलाई, सुना है रुगे, सब कुछ सुना होगा ना, है कि नहीं? ये सब आपका एपिथेलियम मॉडिफाई होके बनाता है। रुगे हो गया, गैस्ट्रिक ग्लैंड हो गया, विलाई हो गया, इंटेस्टाइनल ग्लैंड हो गया, सब कुछ आपका जो इनर मोस्ट लेयर है एपिथेलियम, वो मॉडिफाई होता है। कभी 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 ये ख्याल आना चाहिए आपको कि क्या सब म्यूकोसा के पास कोई ग्लैंड है? बोलो यस और नो। मैंने इतना अच्छे से पूछा है, मतलब होगा जरूर। राइट, दैट इज व्हाई आई आस्क्ड। मतलब आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, है कि नहीं? यस उदयन, तो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडेनम में, स्मॉल इंटेस्टाइन में डिओडेनम है, जेजुनम है, इलेयम है। तो डिओडेनम के सब म्यूकोसा में आपको एक ग्लैंड मिलता है। सब सारे जगह नहीं मिलता, सिर्फ डिओडेनम के सब म्यूकोसा में आपको ग्लैंड मिल सकता है, जिसको बोलते हैं ब्रूनर्स ग्लैंड। कहाँ मिलेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में कहाँ मिलेगा? जो पहला वाला पार्ट है डिओडेनम। बाकी जितने ग्लैंड है ना माय डियर चिल्ड्रन, आपको मिलेंगे सबसे अंदर वाले लेयर में, इनर मोस्ट एपिथेलियल टिश्यू में। यहां तक कोई डाउट है? ये आपके 4 लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल है। ठीक है, इसमें आपका एनसीईआरटी भी है, नॉन एनसीईआरटी भी है, सब मिक्स होके एक स्लाइड है। यहां तक क्लियर एवरीवन? यस नो? क्लिक ऑन यस। यस, परफेक्ट परफेक्ट, मेक इट फास्ट, मेक इट क्विक। यस यस यस। तो कितने लेयर्स हो गए? आकांक्षा पूछ रही है मुझसे कि मैम 7 लेयर बोल सकते हैं, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7। हाँ आकांक्षा, बोल सकते हैं कि 7 लेयर्स है, बिल्कुल ठीक है। यस, लेकिन अगर एग्जाम में आएगा तो मत बोलना 7 लेयर्स है, एग्जाम में आएगा तो क्या बोलोगे? 4 लेयर्स है। देयर आर 4 लेयर्स। उसमें हमने डिविजन कर दिया है ना, हमने बोला कि यहाँ पे ये प्रेजेंट है, यहाँ पे ये प्रेजेंट है, लेकिन मेजरली कितने होते हैं? 4 लेयर्स होते हैं। एग्जाम में आएगा तो 4 करना है आपको, 7 नहीं करना। ठीक है, आई होप सब कुछ समझ आ गया है। यस, सो वी लर्न टिश्यूज, हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। अब हम सीखेंगे क्या?
oral cavity. But before we do that, I want everyone to turn the video on and make it fast, super quick. Let it happen in seconds. Turn the video on. किसके घर क्या खाना बन रहा है मेरे को देखना है. कौन खा रहा है. ये भी हो सकता है कि ऑलरेडी आप खाना खा रहे हो, मैम से बोल रहे हो मैम पढ़ाओ, और मैं तो मस्त खाना खाता हूँ. ऐसा है क्या? नहीं. प्रियांशी इज लर्निंग diligently. Very nice. Yes. We have, who else is there? Shrishti is here. Janvi is here. Mom is preparing food, Janvi. I can see. Yes. Udayan, कहाँ हो? इतने सारे आंसर्स करते हो. I want to see you. Numan, Akansha, Anushka, Shrishti. All of you answer, no? Vaishnavi. Hi, Vaishnavi. You look so fresh now also. Where are you from? Udayan is here. Udayan is like completely into studies. I can see you. Mummy Papa is like, बेटा तुम पढ़ो सिर्फ. Right? हाँ बिल्कुल समझ आ रहा है मुझे. ठीक है उदयन. जानवी, सृष्टि कहाँ हो? आकांक्षा, नुमान, इतना क्यों शाई? Why so shy, man? आप लोग तो नॉर्थ के बच्चे हो, नाक मत कटाओ नॉर्थ की. ठीक है, मैं हमेशा यहाँ पे बोलती हूँ, आई कीप टेलिंग दिस, कि मेरे नॉर्थ के बच्चे होते तो दे डोंट फील शाई. कभी नहीं. मतलब दे हैव दैट कॉन्फिडेंस कि मैं जैसा हूँ वैसा ही बहुत अच्छा हूँ, अच्छी हूँ. इज इट नॉट? आपका हार्ट यहाँ से प्योर होना चाहिए, बाकी सब अच्छा है. यस. कुछ नहीं फर्क पड़ता. एनीवे ओनली आई एम गोइंग टू सी यू ना. मम्मी पापा से शर्म आती है क्या? मम्मी पापा को बोलते हो मम्मी पापा थोड़ा रेडी होके आता हूँ आपके सामने, ऐसा बोलते हो क्या? नहीं ना. फिर मेरे सामने ऐसे क्यों कर रहे हो? इसका मतलब यही है ना कि यू आर नॉट कंसिडरिंग मी एज योर क्लोज्ड वन, है ना? ठीक है चलो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. अच्छा सृष्टि का कैमरा ही खराब है. अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं कोई बात. अब सीखते हैं हम ओरल कैविटी के बारे में. ओके आकांक्षा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, समझिए, दिल पे मत लो, मुझे बुरा नहीं लग रहा है. ठीक है, कोई बात नहीं. ओरल कैविटी, उसमें आपके टीथ है एंड मस्कुलर टंग है. टीथ एंड मस्कुलर टंग, दांते एंड मस्कुलर टंग. इसके अलावा 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड है ना? तो जब खाना खाते हो, that leads to a cavity which is called as buccal cavity और oral cavity. उस oral cavity में क्या है? टीथ है एंड मस्कुलर टंग है. बोल रहे हो मैम ये तो बहुत इजी है, क्या ही पढ़ा रहे हो? चलो पढ़ाती हूँ. अब थोड़ा ये भी पढ़ा है, 6th स्टैंडर्ड में था, मुझे याद है. थीकोडोंट, डाइफायोडोंट, हेटेरोडोंट, ऐसे तरह के दांत हैं हमारे बॉडी में. थीकोडोंट का मतलब हमारा जो दांत है ना वो अंदर सॉकेट में फिक्स है. किसी की दांत ऐसी होती है, क्या हंस रहे हो? बाहर आ गई, हाँ हंसा, बाहर आ गई, फिर हाँ अंदर चले गया. ऐसा होता है क्या? नहीं. मतलब इफ यू हैव असली वाला दांत, as long as you have the असली वाला दांत, it will not happen, right? तो हमारा टूथ हमारे सॉकेट में फिक्स है. तो जब दांतें सॉकेट में फिक्स होती हैं उसको बोलते हैं थीकोडोंट डेंटिशन. ठीक है. अब है डाइफायोडोंट. हमारा दांत डाइफायोडोंट भी है, मतलब हमारे पास 2 सेट ऑफ टीथ है. वी हैव 2 सेट ऑफ टीथ. डाई 2, एक पता ही है ना आपको, एक टेम्पररी है एक परमानेंट है. तो चलो जल्दी से बताओ, टेम्पररी का क्या और कुछ नाम है? जल्दी बताना. हाँ, यस नो पे क्लिक कर दो या चैट पे लिख सकते हो, जो आपको इजी लगे. टेम्पररी, कुछ और बोलते हो इसको? डेसिडुअस बोलते हो क्या? मिल्क टीथ बोलते हो क्या? बिल्कुल बोलते हो. तो वी हैव 2 टाइप्स ऑफ टीथ, टेम्पररी टीथ
and what permanent teeth. थीकोडोंट कमजोर हो जाता है क्या जब टीथ टूटते हैं? मतलब अच्छा, जब आपके मिल्क टीथ टूट रहे हैं, है ना? हाँ, वो जगह बनाता है एक्चुअली। ठीक है प्रियांशी, मान लो आप छोटे थे तो आपका जॉ छोटा था ना, जब आपका जॉ बड़ा होने लगता है, जॉ बड़ा होने लगता है, तो टूथ का जो सॉकेट है वो, आप किसी नेल को अगर वॉल पे लगाए हो, जहां पे लगाए उस होल को बड़ा कर दो, उस होल को बड़ा कर दो, ऑटोमेटिकली नेल बाहर निकल जाएगा। उसी तरह दांत के साथ भी होता है। हमारे जॉज, बच्चे थे हम, बच्चे से बड़े होते तो हमारे जॉ का स्पेस बढ़ गया, दांत उतना की उतना, तो स्पेस बढ़ने से क्या हुआ, वो दांत हिल गया और निकल जाता है बाहर। ठीक है, समझे क्या होता है? ओके, सो डाइफायोडोंट टेम्पररी टीथ एंड परमानेंट टीथ। टेम्पररी को डेसिडुअस भी बोलते हैं एंड मिल्क टीथ भी बोलते हैं, और एक आपका हो गया परमानेंट टीथ। ठीक है, इसीलिए डाइफायोडोंट। तीसरा हेटेरोडोंट। हेटेरोडोंट क्यों बोलते हैं? हमारे पास 4 तरह के दांत हैं अकॉर्डिंग टू फंक्शन। अकॉर्डिंग टू फंक्शन हमारे पास 4 तरह के दांत हैं, है ना? आप चीड़ फाड़ कर सकते हो, ग्राइंडिंग कर सकते हो, है कि नहीं? 4 टाइप्स। इंसीजर कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, है ना? तो आप बोलते हो 32 दांत होते हैं, है ना? 32 मतलब 8 8 8 8। 8 अपर हाफ राइट साइड, 8 अपर हाफ लेफ्ट साइड, 8 लोअर हाफ राइट साइड, 8 लोअर हाफ लेफ्ट साइड. Total makes it 32. So what is the formula? 2 1 2 3. Count it. 2 1 3 2 5 3 8. This is 8 na, and this is also 8. So what this is showing you? One side, one jaw, left side upper part and left side lower jaw. Like that they are showing one part. So 8 and 8, 16. If it is considering left side, make it double twice. It will give you what? Total 32. 16 ऊपर 16 नीचे, समझ रहा है ना? तो ये डेंटल फॉर्मूला हो गया। जब भी डेंटल फॉर्मूला लिखते हो तो ऐसे ही लिखते हो, सिर्फ एक हाफ ऊपर और एक हाफ नीचे। सृष्टि कहाँ है? मेरी सृष्टि किधर गई? ओके सृष्टि, थोड़ा सा टाइम दे दो, आई विल सी। हाँ हाँ, सृष्टि का वीडियो बहुत अच्छा है। देखो कितना मस्त स्कल है, एकदम बड़े बड़े दांत है उसके। सब लोग देख सकते हो सृष्टि की वीडियो, क्या देखो तो, या फिर सिर्फ मुझे दिखता है? कैन एवरीवन सी? उसके नाम पे क्लिक करो, शायद तब दिखेगा आपको। रुको मैं दिखाती हूँ, नहीं दिख रहा तो। अब सबको दिख रहा होगा, है ना? तो शी इज शोइंग दैट। हाँ, अब तो सबको दिख रहा है, मैंने उसका वीडियो स्पॉटलाइट किया है, अब सबको दिखेगा। नाइस नाइस, मैं नहीं दिख रही हूँ अभी, चलो मैं भी दिख जाती हूँ अब। ठीक है, ओके, सबको दिखा दिया सृष्टि, थैंक यू। क्या मैं दिख रही हूँ? कैन यू सी मी नाउ? यस, ओके। तो डेंटल फॉर्मूला खत्म। अब मुझे ये बताओ 2 1 2 3 मतलब क्या है? 2 दांत कैसे है? इंसीजर्स है। 1 दांत कैसे है? कैनाइन है। 2 दांत प्रीमोलर है और 3 मोलर है। समझे? ऐसे हमने फॉर्मूला लिखा है, पता होगा ना यार, बचपन से पढ़ रहे हो, है ना? शुड आई टेल यू इसको बहुत बार? नहीं ना, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो। जो नहीं पढ़े हो वो बताती हूँ। मेरे को टेम्परेरी दांत का डेंटल फॉर्मूला कोई बताएगा? टेम्परेरी दांत का डेंटल फॉर्मूला? या उदयन, क्या बात है यार। अदर्स, उदयन ने आंसर दे दिया है। अदर्स, टेम्परेरी दांत का डेंटल फॉर्मूला जल्दी बताओ। मैं लिख दूं उसके पहले बता दो, बहुत बुरा होगा वरना।
इट इज 2102 अपॉन 2102। बट अगर एग्जाम में आएगा ना, कभी ऐसे नहीं आएगा, एग्जाम में 212 अपॉन 212 आएगा। तो मैंने 2102 इसलिए लिखा, ये समझाने के लिए कि 21 तो आपका सेम है, मतलब इंसीजर के लाइन सेम है। उसके बाद आपके दो प्रीमोलर्स, जो प्रीमोलर्स है वो परमानेंट दांत है, वो बचपन में नहीं आते, इसलिए मैंने 0 लिख दिया। और 3 मतलब मोलर, 3 मोलर में से 2 मोलर आपके मिल्क टीथ है और एक जो है वो परमानेंट है, इसलिए मैंने ऐसे लिखा ताकि आपको समझ आए कि प्रीमोलर्स आपके सिर्फ एक ही बार आएंगे, प्रीमोलर्स 2 बार नहीं आएंगे, ठीक है। लेकिन जब एग्जाम में आएगा ना, तो एग्जाम में ऐसे 0-0 करके नहीं आएगा, एग्जाम में 212 अपॉन 212 आएगा, ठीक है। समझ आ रहा है मैं जो बोल रही हूँ? एग्जाम में दे विल नॉट मेक इट क्लियर टू यू 2102 2102, they will just give you option of 212 upon 212. by chance अगर वो ऐसा ऑप्शन दे देते हैं 2102 2102, तो गो विद दिस। समझ रहे हो? देते कभी नहीं है, अगर दे देते हैं तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि एक्चुअली ये है, बट हम इसको लिखते ऐसे है सिंपल टर्म्स में, समझे? तो परमानेंट आपका कौन सा होने वाला है? परमानेंट मतलब जो एक ही बार आए, जो एक ही बार आए, तो एक ही बार कौन सा है? एक ही बार आपके ये वाले हैं, 2 प्रीमोलर्स सिर्फ एक ही बार आएंगे और 1 मोलर सिर्फ एक ही बार आएगा। 1 मतलब 4, समझ पा रहे हो जो मैं बोल रही हूं? देखो यहाँ पे 1 अभी भी रिमेनिंग है ना, एक साइड का 1 रिमेनिंग है, हमारे पास 4 साइड्स है ना, तो 4 हो जाएंगे ना, 1 into 4 is equal to 4, 4 मोलर्स, फिर 2 प्रीमोलर्स एक साइड, 4 साइड है आपके, तो 8, 2 4 जा 8, तो 8 प्रीमोलर्स। ये जो 12 टीथ है, टोटल 12 टीथ, ये आपके क्या है? एक ही बार आएंगे आपके लाइफ में। बाकी टोटल 32 होते हैं ना, टोटल 32 होते हैं ना, बताओ फिर 32 माइनस 12 क्या होगा? 32 माइनस 12 20 आएगा क्या? सुना है कि 20 मिल्क टीथ होते हैं हमारे, सुना है कि नहीं? है ना? देख लो 212 एक जगह, 2 + 1 + 2 5, 5 एक साइड, 5 दूसरे साइड, 10 नीचे आ जाओ, 5 एक साइड, एक और साइड 5, 10, तो 10 + 10 20, इसलिए मिल्क टीथ 20 है हमारे। वो 2 बार आएंगे, वो 2 बार आएंगे, ठीक है, लेकिन परमानेंट वाले टीथ एक ही बार आएंगे। समझ आया सबको? अगर कुछ भी उल्टा पलटा क्वेश्चन किया उन्होंने दांत को लेकर, कर पाओगे ना सब लोग? फॉर्मूला चेंज करके कौन क्या है कैसा है, कैस पे क्लिक कर दो यार। यस। अब आपका एनसीईआरटी में एक डायग्राम है टीथ का, ऐसा नहीं है, वो ऐसा कुछ बनाया हुआ है, ऐसा करके यहाँ पे वो टीथ का डायग्राम बनाए हुए हैं, है ना? उस ऑर्डर को याद रख लेना, बहुत बार वो एग्जाम में आया है कि कौन सा कौन है। तो देखो ध्यान से ना, जैसे आप इधर से इधर की तरफ जाओगे, इसकी थिकनेस बढ़ती है ना? ये इंसीजर बहुत नुकीला है, फिर कैनाइन है, प्रीमोलर है, मोलर सबसे ज्यादा लंबा चौड़ा है ना? मोलर सबसे ज्यादा लंबा चौड़ा है, राइट? तो ये हो गए आपके एक पार्ट टीथ। अब देखो टीथ में और भी चीजें हैं जो एनसीईआरटी में नहीं है, वो भी सीखेंगे, जनरल है इसलिए, ठीक है। ये बताओ सबसे टफेस्ट हार्डेस्ट सब्सटेंस टीथ का कौन सा है? जल्दी बताओ। वाओ, हाँ ठीक है ठीक है, ये सब तो सही है, लेकिन एनामेल बोलो, ठीक है? वो तो मैं समझ रही हूँ, कैल्शियम वैल्शियम है, इसकी वजह से सब कुछ है, बट बोलते क्या है उसको? हार्डेस्ट सब्सटेंस को एनामेल बोलते हैं। एनामेल क्या है? ये जो दिख रहा है ना, ये दांत ऊपर का जो एक्सपोज्ड पार्ट है, वो क्या है? एनामेल। एंड दैट इज सेड दैट
कि दैट्स द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी, है ना, टीथ, एनामिल, है ना। जैसे ही एनामिल के नीचे जाओगे, इस लेयर के नीचे जाओगे, दैट इज कॉल्ड एज डेंटाइन, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज डेंटाइन। एक दूसरा स्लाइड लेके दिखा देती हूँ। मान लो ये क्या है आपका एनामिल, उसके नीचे का जो भी लेयर है ना, उसके तुरंत नीचे का जो लेयर है वो डेंटाइन है। सबसे ऊपर का क्या है, एनामिल है। उसके बाद आपका डेंटाइन है, रूट कैनाल आ जाएगा। रूट कैनाल में आपको सारा कुछ मिलेगा, ब्लड वेसल्स, नर्व्स। किसी ने ये सुना है रूट कैनाल ट्रीटमेंट? लोग बोलते हैं ना आपका एनामिल खराब हो गया है, डेंटाइन के अंदर जा चुका है, पस बन गया है, हमें पस को निकालना पड़ेगा। रूट कैनाल वो सारे इंजेक्ट करके सारे पस को खींच लेते हैं और फिर उस पे एक्चुअली वो करते क्या है, पस को खींच लेंगे और फिर वहां पे कैप लगा देंगे ताकि कुछ भी वहां अंदर जाएंगे, कुछ भी अंदर नहीं जाए, एक कैप लगा देते हैं, बिल्कुल। तो दैट इज आरसीटी, है ना। वो 2 सीटिंग 3 सीटिंग में करते हैं। डॉक्टर आपको 2 बार 3 बार बुलाएंगे, 2 बार आपको क्लीनिंग के लिए बुलाते हैं, तीसरी बार कैपिंग वैपिंग लगाने के लिए, दांत का शेप लेने के लिए, है ना। दैट इज रूट कैनाल ट्रीटमेंट, ठीक है। तो आपसे बस यही पूछा जाएगा, सबसे हार्डेस्ट वाला ऊपर वाला पार्ट एनामिल है, उसके नीचे वाला डेंटाइन है, एक रूट कैनाल होता है जिसमें ब्लड वेसल्स, नर्व्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, बाकी कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह तो प्रेजेंट होता ही है, वो सब कोई पूछेगा नहीं आपसे, ठीक है। तो जितना पूछा जाएगा एनसीईआरटी प्लस नॉन एनसीईआरटी सब पढ़ लिया हमने टीथ से रिलेटेड। एनी डाउट अप टू हियर यू कैन आस्क, कोई भी डाउट है पूछ लो, एनी डाउट इज देयर यू कैन आस्क।